नमस्कार, मैं सबनाज और खबर आसनसोल देख रहे हैं आप। स्पॉन्सर्ड बाय आसनसोल कार बाजार। ये आसनसोल कार बाजार। मोबाइल हॉस्पिटल, मोबाइल हॉस्पिटल, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, फर्नीचर का एक ही नाम, फर्नीचर वर्ल्ड। और आइए सीधे चलते हैं खबरों की तरफ। बंधन बैंक के स्टाफ पे लगा ग्राहकों को लाखों का चूड़ा लगाने का आरोप। ठगे गए ग्राहकों ने आज सनरेरे रोड पर स्थित बंधन बैंक के सामने विक्षोभ किया और संवाददाताओं के सामने नाराजगी दर्ज कराई। मौके पर पुलिस पहुंची। बैंक की ओर से कहा गया कि आरोपी देवराज गोप का दुमोहानी ब्रांच में ट्रांसफर हुआ है और उसकी जांच की जा रही है। बैंक की ओर से सूचना दी जाएगी। जानना आपको कल्ला पानी टंकी में जहाँ है वहाँ आइए आप, जहाँ पैसा दूर जिले किसान তারপরে এই ব্যাংকে আসা হলো। ব্যাংকে আসা বলছে আপনাদের কোনো অ্যাকাউন্ট এফডি খোলা হয়নি, ওই চেকটা এখন এখানে এসে দেখা গেলো যে ওই চেকের যার অ্যাকাউন্টে টাকাটা গেছে ওই টাকাটা হচ্ছে শিখা মণ্ডল নামে কোনো একজন কারণ ব্যাংকে মণ্ডল নামে অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হয়েছে এবং তাদের তার মানে হচ্ছে ওই যে ব্যাংকের যে ম্যানেজার বা ছিলেন উনি টাকাটাকে অন্য অ্যাকাউন্টে এরপরে এখন এসে করে দেখছি প্রত্যেকটা চিটিং হয়েছে। ওরা একটা সামারি করে আমাদেরকে একটা কমপ্লেন দেয়। সেই কমপ্লেনের উপরে যে লোকটার বিরুদ্ধে কমপ্লেন হবে তাকে আমরা অ্যারেস্ট করবো, অ্যারেস্ট করে চেষ্টা করবো আপনাদের টাকা রিকভারি করে। আপনারা যা কিছু এখন পর্যন্ত সব তো ভারবেননি তো আপনাদের খবরের মাধ্যমে দেখুন যে আপনি বন্ধন ব্যাংকে এই চেকটা দিচ্ছেন, এই চেকটা বন্ধন ব্যাংকে দেবেন। বন্ধন 8 लाख रुपया फीस करवाए थे, तो हमको पैसा का ज़रूरत था। तो बैंक का जो स्टाफ है उसको हम बोला कि हमको पैसा का ज़रूरत है, तो बोला सारा डॉक्यूमेंट्स हमको दे दीजिए। दे दिए। उसका बाद हमको 3-4 दिन के बाद बोलता आप चेक तो डलवा दीजिए। चेक डाल दिए। चेक डालने के बाद बाउंस हो गया। आके पता करते हैं तो मेरा अकाउंट में पैसा ही नहीं है। यही बैंक बंधन बैंक का स्टाफ ही था। तो किसको दिए थे आप? बंधन बैंक का स्टाफ। क्या नाम है उनका? देवदास गोप। आप कहाँ रहते हैं? हमारे मुसला कॉलोनी में हमारा घर है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट क्या क्या दिए थे आप?
वो जो चेक लिया था और आपका नाम एक मिनट, वो जो फिक्स का, आपका नाम? हमारा नाम दिलीप प्रसाद। आपका पूरी আমি 2021-এ একটা 1 লাখ টাকা আমার কাছে নিয়েছিল ফিক্সড ডিপোজিট করার জন্য। তো সে আমাকে একটা ভুয়ো সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল। সেই ভুয়ো সার্টিফিকেট যখন আমি ভাগাবো মনে করি, তো ভুয়ো আমার বাড়িতে এসে সব কিছু কাগজপত্র নিয়ে গেছে। তারপর আমি যখন ব্যাংকে খবর নিচ্ছি দেখছি না, ওটা মানে একদম ভুয়ো জাল, ও ইয়ে করেনি। লোকটা এখন আছে? লোকটা পাওয়া যাচ্ছে না। ওর বাড়িতে গেছিলাম, হ্যাঁ। ওর বাড়িতে গেছিলাম, ও দুদিন থেকে গায়েব হয়ে গেছে, ওকে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় বাড়ি? আল্লাহ। তো আপনারা কমপ্লেন করেছেন থানাতে? থানায় আমরা যাচ্ছি না। কত টাকা ছিল আপনার? আমার 1 লাখ টাকা। কি নাম? অজয় পাত্র। আমি একটা 2019 বলছেন আমার হাজবেন্ড। আমার 2019-এ সিনিয়র সিটিজেন মার নাম শুক্লা ভৌমিক, মানে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট হচ্ছে আমি ওনার ছেলে কল্যাণ ভৌমিক আর বৌমা হচ্ছে কবিতা ভৌমিক। একটা 3 লাখ টাকার চেক দেবদাস গোপ এই ব্যাংকের তখন স্টাফ ছিল, এখন বলছে ওরা রিসেন্ট মানে 1 বছর হলো দোমানি ব্রাঞ্চে ট্রান্সফার হয়েছে। আমার থেকে 3 লাখ টাকার চেকটা নিয়ে ও এফডিটা করার সেই ফলস সার্টিফিকেট আমাকে দিয়েছিল। এবং 2022-এ অক্টোবরে যখন ম্যাচুরিটি ছিল, আমার পয়সা যখন ম্যাচুরিটি ও আমার থেকে অরিজিনাল পেপারটা নিয়ে যায়, নিয়ে গিয়ে থানায় পানায় করে। এবং তার সাথে একটা বাজাজ বন্ধন ব্যাংকের বলুন, বন্ধন ব্যাংকিংটা। হ্যাঁ বলছি বন্ধন ব্যাংকেরই আমার পাসবইয়ে এন্ট্রি আছে। ওই চেকে বন্ধন ব্যাংকের যে চেক 1 নম্বর চেক দেওয়া হয়েছে, সেটা ট্রান্সফার টু চেক নাম্বার দেখানো হচ্ছে, কিন্তু আমার কোনো এফডি রেজ হয়নি, আমার ম্যাচুরিটির সময় কোনো টাকা ঢুকলো না। যখন ওকে কোশ্চেন করছি যে তুমি কাগজগুলো নিয়ে গেলে, এবং ইন দি মিন টাইম একটা বাজাজ অ্যালায়েন্সের বন্ডও বন্ধন ব্যাংক অ্যালায়েন্স পার্টনার ছিল, এবং সেই বন্ধন ব্যাংকের অ্যালায়েন্স পার্টনার থাকা সত্ত্বেও আমি বন্ধন ব্যাংককেই চিনি, বাজাজকে চিনি না। এবং সে আমার থেকে যখন পলিসি বন্ডটা নিয়ে যায় যে আপনার এটা ম্যাচুরিটি আপনার 3 বছর হয়ে গেছে, আপনি এখন এটা ভাঙাতে পারেন, উইথ ইন্টারেস্ট আপনাকে দিয়ে দেবো, সে অরিজিনাল পেপার দুটো বন্ডের এবং এফডির কাগজটা নিয়ে গিয়ে আজ নয় কাল করে বলে আপনার রিনিউয়াল করে দিচ্ছি, কাগজটা দিচ্ছি, কিন্তু আমাকে বিশ্বাসের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ও বন্ড এবং পলিসি কোনো কিছু না করে, আমি যখন কাস্টমার কেয়ারে ফোন করি এবং আমার কাস্টমার আইডি দিয়ে যখন আমি সমস্ত ব্যাপারটা ছানবিন করতে যাই, তখন কাস্টমার কেয়ার আমাকে জানায় শুক্লা ভৌমিকের নামে একটি এফডি একটি আরডি কিন্তু এখানে অস্তিত্ব আছে, যে নাম্বারের এগেনস্টে আপনাকে এফডি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল সেটা পুরোপুরি ফলস এবং তার কোনো অস্তিত্ব নেই। এখন এখানে ছান করে দেখা গেল যে সেখানে ফরজারি করে সেই চেকটা শিখা মণ্ডল নামে কারোর অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হয়ে গেছে, কিন্তু কবিতা ভৌমিক শিখা মণ্ডল কেউ চেনে না, শিখা মণ্ডলের নামে কোনো চেক দেয়নি, এবং হ্যান্ড রিটেন এক্সপার্ট বা যদি কালির কোনো এক্সপার্ট প্রমাণ করা হয় সেখানেও কিন্তু প্রমাণটা বেরিয়ে যাবে। এবং লাস্ট রবিবার আমি যখন তার সাথে ইন্টারাকশান করি হোয়াটসঅ্যাপে এবং ফোনে, আমি বিধান উপাধ্যায়ের বাড়িতে আমি একজন ওই সিস্টেমের বিএলও ইলেকশন বিএলও, তার ভোটার কার্ডটা যখন দিতে যাই, রেজিস্টার কাজ করতে যাই, আমি বললাম আমি 11টা থেকে 11:30-টার মধ্যে বিধানের বাড়িতে যাব, তুমি উইদাউট ফেল তুমি 11টার মধ্যে। লোকটা কোথায় থাকে? লোকটা থাকে কাল্লা ভিলেজে, কাল্লা সেন্ট্রাল হসপিটালের সামনেই। গোপ, ওর বাবার নাম কি সামথিং, এরা ডিটেলস দিয়ে দেবো, বন্ধন ব্যাংক, ওর নাম দেবদাস গোপ, এবং দোমানি ব্রাঞ্চে এখন অ্যাট প্রেজেন্ট ছিল, ওকে রাস্ট্রিক করেছি কি জানি না, ওরা বলছে আমরা থানায় এবার করে রাস্ট্রিক করেছি, ওসব আমার দেখার দরকার নাই। আমরা চাই আমার মতন এরকম আরও অনেক। কত টাকা ছিল? আমার ছিল 3 লাখ, ম্যাচুরিটি ভ্যালু ছিল 3,83,000, 36 মাসের জন্য। এই যে স্টাফটি করেছে সেই স্টাফটি এখন দোমানি ব্রাঞ্চে বসছে, তার বিরুদ্ধে অলরেডি ব্যাংক যা করণীয় এফআইআর পেপার করা হয়েছে, তার সাসপেনশন অলরেডি ব্যাংক তার সাসপেনশন অফিসিয়ালি এটা আপনাকে জানানো হবে, আমরা অফিসিয়ালি আপনাকে দেবো, কিন্তু এই মুহূর্তে যেহেতু আমরা দেখছি জিনিসটা, আমরা তো জানবো। এই শুনুন, এইগুলো আমি বলছি যেটা উনি এখন আমার ব্রাঞ্চে নয়, উনি এখন দোমানি ব্রাঞ্চে আগে কাজ করতে এখানে ব্যাংক অফিসিয়ালি জানাবে, ব্যাংক অফিসিয়ালি দাদা আগে কাজ করতে এখানে? হ্যাঁ আগে এখানে দাদা কাজ করতে যে সময় ঘটনা ঘটেছে আমার ব্যাংকে যখন কাজ করতে এই ব্রাঞ্চে কাজ করতে কি বলছেন যে আপনার ব্যাংকের সঙ্গে কোনো নিয়ে নেই? তাহলে দায়িত্ব কে নেবে? হ্যাঁ অফিসিয়ালি জানানো হবে, আপনাকে জানানো হবে। অফিসিয়ালি আমরা স্টেটমেন্ট, অফিসিয়ালি আপনাকে ব্যাংক এফআইআর করেছে, যা ফার্স্ট ব্যাংক অফিসিয়ালি স্টেটমেন্ট বার করেছে, গতকালকে করা হয়েছে,
এফআইআর করা হয়েছে, ওকে ওর সাসপেনশন করা হয়েছে, ওকে ওর ফ্যামিলির সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। ব্যাংক যা করণীয়, ব্যাংক যেটা স্টেপ দেওয়া সেগুলো স্টেপ দিচ্ছে। মানুষের টাকার দায়িত্ব এবার 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 যা করণীয় ব্যাংক অফিসিয়ালি আপনাকে টাইম টু টাইম জানাবে। আপনার ব্যাংকে এমডি করা হয়েছিল, আপনার ব্যাংকে এমডি করা হয়েছিল, গতকালকের আপনি আমাদের সঙ্গে কথা বলুন, আপনি শুভময় চ্যাটার্জি, ঠিক আছে? এটা 2019 সালের ঘটনা। হ্যাঁ, 2019 সালের ঘটনাটা, 2019 সালের, ঠিক আছে? তো ঘটনাটা হচ্ছে, যেটা হয়েছে গতকালকে ধরা পড়েছে, দোমানি ব্রাঞ্চ থেকে ঘটনাটা হয়েছে। তারপরে আমার ব্রাঞ্চ পাওয়া গেছে। এখন ব্যাংক এটা অফিসিয়ালি ব্যাংক এটা স্টেটমেন্ট দেবে আপনাদের। কিন্তু বলা হচ্ছে যে এই ব্যাংকের থেকেই টাকার প্রতারণা হয়েছে। এগুলো আমি এখন কিচ্ছু বলতে পারবো না, আন্ডার ইনভেস্টিগেশন আছে। কিন্তু ইনভেস্টিগেশন হোক, ব্যাংক অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট দিয়ে দেবে। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस की एक टीम आज काउंसलर चौताली तिवारी के निवास पर पहुंची, मगर घर पे ताला लगा देख के पुलिस को लौटना पड़ा। आपको बता दें कि कल ही आसनसोल नॉर्थ थाने की ओर से चौताली तिवारी के घर के दरवाजे पे नोटिस चिपकाया गया था, जिसमें 20 दिसंबर को घर पे रहने को कहा गया था। वहीं इस सिलसिले में जब जितेंद्र तिवारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। चलो ना मैडम आप हाँ 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 अच्छा
ठीक है आपको हम बाद में कर रहा हूँ ठीक ठीक ऑफ कर ले দাদা একটু পিছিয়ে দাদা চলে আসুন স্যার কিসের জন্য আসা হয়েছে কিসের জন্য আসা হয়েছে কিসের জন্য আসা হয়েছে আসছিলাম যখন তখন দেখছি সবাই বলছে দৌড়কে চল 800 মিটার না 100 মিটার না আর এদিকে বলছে কি হলো আজকে স্যার আজকে কি হলো এটা কি আমাদের গাড়ি স্যার আজকে কিছু বলুন স্যার কি হলো স্যার আজ কেন এসেছিলেন স্যার আজকে आगे मत जा रुक जाओ बस সকাল 10টার সময় যারা এসেছিলেন পুলিশের আজকেই পুলিশ আসানসোলের যে কনস্টার অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে কিছু ধারে সেই ঘাট থেকে ইতিমধ্যে চলে যাচ্ছে। आज आसनसोल नगर निगम में मेयर विधान उपाध्याय डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने निगम के विभिन्न विभागों का दौरा किया। आपको बता दें कि मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि हमारा काम है लोगों को परिसेवा देना और जनता नगर निगम से मायूस ना लौटे, इसके लिए सभी नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी को एक्टिव रहना होगा। वहीं जो लोग टेबल पे नहीं पाए गए उन्हें मुलाकात करने के लिए कहा गया है। সবাই তো আছে তোমরা ঠিক আছে आपको दिखाई नहीं पड़ा क्या
সব স্টাফে রয়েছে, সবে নিজের কাজ করছে, সেটা আমি দেখার জন্য গেছিলাম যে সব ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা, মানুষ পরিষেবা পাচ্ছে কিনা। এই তারা কাজে গেছে, কোথাও এরপর কাছে গেছে, কোথাও যেতে গেছে, কোথাও আমার কাছে এখানে এসছে। তো 2-3 জনকে বলে গেলাম দেখা করার জন্য, যে যারা নেই টেবিলে তাদেরকে আসার জন্য বলে দিলাম। কারণ আমাদের অলরেডি 10:45 টাইম দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে অফিসে ঢুকতে হবে, সন্ধ্যে 6টার মধ্যে বন্ধ আসতে হবে। কারণ আমাদের কাজটাই হচ্ছে মানুষকে পরিষেবা দেওয়া, মানুষ যেন কেউ ফিরে না যায়, পরিষেবাটা যাতে পায়। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अवकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। शिल्पांचल में एक्सक्लूसिव फर्नीचर का एक ही नाम, फर्नीचर वर्ल्ड, जहां देसी विदेशी हर तरह के फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शंस पाएं। और पूजा पर फर्नीचर वर्ल्ड में चल रहा है फेस्टिव ऑफर, हर खरीदारी पर पूरे 20% की धमाका छूट। जी हां, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। तो फिर पूरे घर को सजाएं फर्नीचर वर्ल्ड के नए डिजाइन वाले फर्नीचर से। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। GT रोड अपोजिट शनि मंदिर, निरुद्दीन रोड, आसनसोल। अगर आप हो गए हैं अपने पुराने फ़ोन से बोर, तो आज ही आए मोबाइल हॉस्पिटल। ज़्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट में पाए नया स्मार्टफोन, वो भी ऑनलाइन से सस्ते और एक्साइटिंग ऑफर्स के साथ। इसके अलावा स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एसेसरीज भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। नोट करें हमारा एड्रेस, ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर चेरांगा, आसनसोल। अच्छी कंडीशन में चाहिए सेकंड हैंड कार, तो चले आइए आसनसोल कार बाजार।
हमारे यहाँ मिलेंगे सभी प्रमुख कंपनियों की कारें जैसे मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, महिंद्रा और टोयोटा आदि। स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ 1 लाख रुपए। गाड़ियों के सारे कागजात और नेम ट्रांसफ़र के साथ हमारे यहाँ चल रहा है धनतेरस धमाका ऑफर। तो देर किस बात की, आज ही आए हमारे शोरूम आसनसोल कार बाजार, NH2 बाईपास, शीतला मोड़, ADDA। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ OT में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे OT का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। छोटा के तो लोड हो रहा हजरात, देखिए अब बाज़ाब्ते तौर पर मीटिंग की कार्रवाई शुरू की जा रही है। आप बैठ। मैं इनके बाद पप्पू को आवाज दूंगा। सलमान इकबाल, आप अपने हाथों से जनाब एक से मिले, जनाब से जनाब इंतजार खान का आपको सलमान इकबाल देंगे। उसके बाद उत्तरी दीजिए, उत्तरी दीजिए जनाब सैयद अबू संजय साहब को। मैं रहमत नगर, जो जरूरी बातें आप लोग तक पहुंचनी चाहिए उसको छुपा के, उसको दबा कर, और दूसरी बातें ऐसी जो जिससे आपस में नाइतफाकी पैदा हो, ऐसी बात वो करके चली गई। जाहिर सी बात है कुछ कमियां सब जगह हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक ठाक है, और मैं खुद आप लोगों के साथ हूँ इस बात पे कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां से आप एमएलए बनी है आप और कॉन्स्टिट्यूंसी जाके अपना देखिए। आप वहां जाके ये समझिए कि उनकी परेशानी क्या है। यहाँ हमारे लिए जनाब सोराब अली साहब काफी है और हमें दूसरों की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप आकर ये देखिए कि हमारे एरिया में यहाँ पे जो लोग रहते हैं, ये लोग यहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। तो आप ये सोचेंगे मुस्लिम एरिया के आगे चले गए तो ये गलत फहमी है आपकी। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहते हैं और बहुत इत्तेहाद से रहते हैं और बहुत मजबूती से रहते हैं। आप इसको सोच के तोड़ के पार कर जाएंगे तो अभी तक ऐसा आपके अंदर क्वालिटी हमने देखा नहीं। आप ये देखिए कि जितने लोग हैं यहाँ पे, आप सिर्फ तिरपाल गिन रहे हैं। आप ये देखिए कि आपकी जो जरूरत की चीजें हैं वो आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। गवर्नमेंट बनने के बाद आप एमएलए बन गई, आप ये बताइए कि आप इस जगह पे 2-3 बार आ गई है, यहाँ पे कुछ लोग को उन्होंने समझा के अपने साथ कर लिया है, तो उनको क्या लग रहा है? आप जो लोग इनके साथ जुड़े हैं, आप उनसे एक वादा करा लीजिए कि जो एमएलए फंड होगा उससे कम से कम 30-40 लाख रुपए इस रोड में खर्च करा लीजिए आप, तो मैं आपको बात मान जाऊं। आप एमएलए फंड की बात उठाइए, वो आना बंद कर देंगे। यहाँ पे जितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे आके एक रोड में सिर्फ 2-4 बार आके चले जाना और यहाँ की गलतियां गिना के चले जाना। आप जिस वार्ड में जिस जगह पे रहती है वहां के आसपास के रोड नाली और सफाई को देखिए। आप हमें सफाई के बारे में मत बताइए, सफाई आधा ईमान है हमारा, हमें खुद पता है इस बात। तो आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे, उन सबसे गुजारिश है कि जब भी वो आए
उनसे एमएलए फंड के बारे में जरूर पूछिएगा, उनसे सवाल करिएगा ये फंड का पैसा आप कब देंगे, यहाँ पे सिर्फ तिरपाल के लिए है और किसी चीज के लिए भी है। तो खैर बहरहाल बहुत सारे लोग हैं मंच पे मैं तशरीफ लाए हमारे बहुत से कौन का जो हद पार करने वाला बात है कि विधायिका जो कुछ दिन पहले यहाँ पर कंबल बांटने का नाम से जो हमारे उनके जो राजनीतिक पॉलिटिकल जो फायदा के लिए जो मृत्यु हुआ था, एक बेटी हमारे घर के दोनों माता दोनों महिलाएं, तो उसके जो अभी तक सबका अभी तक ठंडा भी नहीं हुआ, उसका जो दाह किया गया था। और उनके बाद भी उन लोगों को शर्म नहीं आता कि आ गए रहमतनगर जैसा यहाँ पर जगह में राजनीति करने, और कैसा गंदा राजनीति कि आप आए हैं जगह देखने, आप आए हैं रास्ता नहीं बना है, कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। अब उसका बारे में बोले ठीक है, कूड़ा कचरा इतना दिन पहले भी तो गिरा हुआ था, उस टाइम भी ये बातें आप आके नहीं बताएं। आप आज 2 साल होने चला है कि आप विधायक बने हैं, 2 साल में आप एक बार भी नहीं, वोट का जिस दिन वोट था उस दिन एक बार आए थे यहाँ पर भाग दौड़ मचा के हमारा वोट को कम करके आप गए थे। उसका बाद आज आए हैं आप क्या दिखाने कि आप कितना ख्याल रखते हैं अपना जो एरिया है, आपका जो इलाका विधायक क्षेत्र के एरिया में, लेकिन वहाँ आके क्या बताएं कि स्कूल का सामने कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ पर रोड रास्ता बना हुआ नहीं। तो दीदी इतना दिन आगे भी था, आपको पता था, आना चाहिए था। और आपको शर्म करना चाहिए कि आपका चलते आप लोगों का घिनौना जो राजनीति, घिनौना जो पॉलिटिक्स, उसका चलते आप लोगों का जो मेरा वहाँ पर माता बहने 14 नंबर वार्ड में वहाँ पर जो 14 तारीख को 27 नंबर 27 नंबर वार्ड जहाँ के पूरा माता है चौधरी तिवारी जी जो विरोधी दल में है बीजेपी में, तो उनके जो मृत्यु हुआ है उनके साथ हमारे मंत्री से लेकर मेयर से लेकर एडीडी चेयरमैन से लेकर हमारे जो प्रतिनिधि दल आए थे सब आके मिल रहे, उनका पास जा रहे, उनका पास हमारे कर्मी समर्थक हमेशा अभी भी है। लेकिन बीजेपी का जो घटना था, बीजेपी का जो पार्टी मीटिंग था, बीजेपी का जो एजेंडा था, सिर्फ चर्चा का नाम से जो पब्लिक बुला के आदमी का जो इतना दुर्घटना से मर्मांतिक मृत्यु हुआ, उसका बाद आप लोग कोई अभी तक नहीं पहुंचा है। वो लोग को पहुंचना जरूरी महसूस नहीं हुआ कि जानते धर्म है, जाके धर्म पर हमको बताएंगे कि मुसलमान बढ़ चुका है, हिंदू घट चुका है, हिंदू को बढ़ाना है, जय श्री राम का नारा लगाना है, हम लोग को वोट मिल जाएगा, हम लोग आगे चल जाएंगे। लेकिन आपको तो शर्म आना चाहिए कि आप विधायिका है कि आपको यहाँ आना चाहिए। साल में तो अब एक बार भी तो नहीं आते, दुर्गा पूजा आया अब आए भारी मैदान में ढाक बजा के चले गए, छठ पूजा आए अब आए दामोदर घाट में एक तो कप चाय भी किसी को नहीं पिलाए, अब आए अर्घ दे के चले गए। फिर अभी आए इतने दिन बाद, दो महीने का बाद आके आप यहाँ दिखा रहे यहाँ ऐसे ऐसे हुआ नहीं, काम हुआ नहीं। अरे दीदी ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। और बीजेपी एक ऐसा बीमारी है समाज में, उसको घुसने देना नहीं है, कोरोना से भी डेंजर है। एक बार अगर घुस गया तो उन लोग को निकालना नहीं है। उन लोग तोड़ फोड़ के राजनीति, हिंदू मुसलमान बंगाली बिहारी ऐसा वैसा करके उन लोग बांट के ऐसे कर देगा इस जगह को। अब यूपी में अभी भैया थोड़ा देर पहले बता रहे थे, जो एमएलए का मिनिस्टर का लड़का का चलते हुए उसका अभी तक कोई सजा भी नहीं हुआ। तो इस बीमारी को, इस जो बीमारी है इसको घुसने देना नहीं है। संक्रमण इतना है, कोरोना भी उसका सामने फेल है। तो बीजेपी को हटा के रखना है। जो भी यहाँ से अभी ज्वाइनिंग हुआ है उन लोगों का बात अगर मेरा बात अगर उन लोग तो पहुंच रहा है तो आप लोग को ज्वाइनिंग करना था तो कोई अच्छा पार्टी में करते, तृणमूल कांग्रेस में आते, सौरभ का साथ हाथ मिला के कंधा में कंधा मिला काम करते। अब ऐसा पार्टी में गए जो खाली तोड़ने का राजनीति करता है। अंग्रेज सिखा के गया बीजेपी, वो अभी तक चला रहे हैं फुट डाला राजकर्म, फुट डाला राजकर्म। ये जल्दी चलने वाला नहीं है। बहुत सारे वक्ता यहाँ पर है। एक ही हम लोग को यहाँ की आज जो मीटिंग हम लोग तृणमूल कांग्रेस का इस वार्ड में हम लोग को एक इरादा यहाँ से जाकर बना के जाना है कि बीजेपी को समाज का कोई भी स्तर में घुसने देना नहीं है, चाहे जैसे भी रोकना है। हम लोग आप लोग का साथ है, हम लोग का साथ रहेंगे, आगे भी रहेगा। हमारा नेत्री ममता बनर्जी आपका साथ है। हमारा সেখানে বিজেপি নামক একটা দল যেভাবে একে একটার পর প্রতিটি পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে, প্রতিটি গ্রামে গ্রামে গিয়ে যে বিভাজনের রাজনীতি করছেন, সত্যি আমি একজন ভারতবাসী হিসেবে লজ্জিত। তাই সকলকেই আপনারা যারা বাংলা বুঝেন আমি আশা করি, কেননা এই বানপুর এমন একটা শহর যেখানে প্রতিটি ঘরে ঘরে বাংলা সবাই ঢুকে আছে। তাই আমি বাংলাতে আপনাদের সামনে একটা বার্তা দিচ্ছি যে আমি একটা বাঙালি ছেলে। যে দলটা করছে সেটা বিজেপি, যারা হিন্দুকে সামনে রেখে। কিন্তু আমাদের সকলের বোঝা উচিত যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বিগত বছর ধরে আমাদের জনসমক্ষে যেসব প্রকল্পের কথা তুলে ধরেছেন, যেসব সমাজ চেতনের কথা তুলে ধরেছেন, সেগুলো সম্পূর্ণ ভুয়ো।
কিছুদিন আগে আপনারা শুনেছিলেন যে রাম নামের নাম করে ভারতবর্ষের মধ্যে একটা রাজনৈতিক অস্থিরতা যে তৈরি করেছিলেন সেটা মানুষ নিল না। তার ফলস্বরূপ ইদানিং তারা আমাদের শান্ত বাবাসী যে শিব বাবাকে আমরা সবসময় করজোড়ে নমস্কার করি, প্রণাম জানাই, যার স্মরণ হয়ে আমরা ঘর থেকে বাইরে যাই, সেই আমাদের মহেশ্বরকে রাজনীতির সামনে নিয়ে এসছেন। দেখলেন রাম নামে কোনো কাজ হচ্ছে না, রাম নামে মানুষ নিচ্ছে না, রাম নামে মানে সৎ হয়ে গেছে, সব সৎকার করে দিয়েছেন। বিজেপি পার্টিকে কাঁধে নেবে জয় রাম করে সৎ করে দিয়েছেন। এখন নিয়ে এলো কি হার হার মহাদেব, হার হার মহাদেব। কিন্তু আমি জানি আমরা হিন্দুরা যারা আছি, আমরা যারা খ্রিস্টানরা আছি, যারা মুসলিমরা আছি, যারা বৌদ্ধরা আছি, কেউই আমরা ধর্মের নামে নোংরা রাজনীতি এটা করতে দেব না। আর গতকাল আমাদের মাননীয় বিধায়িকা এসছেন রহমতনগরে, তিনি বিধায়িকা, ওনার অনেক কর্তব্য আছে, সমাজের প্রতি প্রচুর কর্তব্য। উনি শুধু দোষ দেখতে আসেন, হয়তো কোথাও চা দুটো বিস্কুট খেয়ে বড় বড় কথা বলে চলে যান, কিন্তু যে সামাজিকতার আপনাকে যে সমাজের মানুষরা ভোট দিয়ে জিতিয়ে নিয়ে এসছেন, আপনি আমাদের আসানসোল তথা আসানসোল দক্ষিণের শহরের প্রতি করলেনটা কি? আমি বলি, সকলকে বলি, আপনারা সকলে এককাট হয়ে বলবেন, উনি যেদিন আসবেন সেদিন আপনারা করজোড়ে বলবেন, দিদি আপনি বারবার আসুন, কিন্তু আপনি বিধায়িকা হয়েছেন খুবই খুশির জিনিস, কিন্তু আপনি আমাদের জন্য করলেন কি? আর তার আগে তাদেরও বলবেন যারা ওই গতকাল নাকি শুনলাম ওই ঝান্ডাটা ধরে পড়ে, যে ঝান্ডাটা জয় শ্রীরাম করতো, যার কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যাবে, এখন ওই হর হর মহাদেব করে মেতে উঠছেন, ওনাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন যে আপনারা বিধায়কে নিয়ে আসছেন পাড়ার মধ্যে, আপনারা কি কি কাজ করবেন? আপনারা বসুন, আমরা আপনাদের সাথে থাকবো, আপনারা প্রথম কাজগুলো করে দিন না, কাজগুলো করুন না। আপনারা যে কাজগুলো বলছেন, যেগুলো চোখে দেখাচ্ছেন, যেগুলো একটা বিধায়কের করার দরকার ছিল, সেগুলো আপনি করবেন। দেখুন না কি রেজাল্ট হয়, আমার মনে হয় না উনি। আর এটা সকলে মাথায় রাখা দরকার যে আমাদের এই পশ্চিমবাংলার বুকে, আমি গত পরশু দিন যে চিকিৎসায় আমাদের মিটিং হয়েছিল, আমি এই কথাটাই বলেছিলাম যে আমাদের মাননীয় মানে আমাদের পরম পূজনীয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাতৃ স্নেহে আমাদের পশ্চিম বাংলাকে যেভাবে আঁকড়ে রেখেছেন, কালের আবর্তনে, সময়ের পরিবর্তনে, প্রাকৃতিক নিয়মে সকলকে একটি পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়। কিন্তু আমি মনে করি যেদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকবে না, সেদিন হিন্দু হোক, মুসলিম হোক, শিখ হোক, জৈন হোক, খ্রিস্টান হোক, যেই হোক, সেদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভাবটা বুঝতেই পারবেন যে মাতৃস্নেহ পশ্চিম বাংলায় যেভাবে তিনি আঁকড়ে রেখেছেন, আজ পশ্চিম বাংলা কোন দিকে যেতে চলেছে। 79 नंबर वार्ड है और उसके बाद से 82 नंबर वार्ड। बोलने का मकसद है कि वो जब यहाँ पे आए तो कुछ लोग उनको पीछे के रास्ते में ले गए कि यहाँ पे कुछ लोग घर बना लिए हैं, रास्ता खत्म हो गया। बिल्कुल सही बात है। मैं जो लोग यहाँ पे रहते हैं, मैं उनको, ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी एक बार कहा था कि जब वो बन रहा था तो उस वक्त आप लोगों को आना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि उसको रोक देना चाहिए था कि वो जो रास्ता है, मतलब वो रास्ता 4 नंबर से निकलने का रास्ता, उसको रोक देना चाहिए। लेकिन जब पूरा घर कंप्लीट हो गया, उसके बाद से भी कोशिश किया गया, कारपोरेशन में चिट्ठी दिया गया, मतलब सेल ISP को चिट्ठी दिया गया, तमाम कुछ किया गया, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। हम एक बात कहना चाहते हैं कि अग्निमित्रा बाबा साहब यहाँ पर आई, लेकिन वो ये नहीं बात बोली कि जो सेल कंपनी है, इसको कंपनी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपनी है, जिसका मालिक नरेंद्र मोदी जी है और यहाँ पे अग्निमित्रा पाल जी। तो उनको
कारपोरेशन के बारे में नहीं बोलना चाहिए, तो उनको बोलना चाहिए था ये कंपनी का जमीन है, कंपनी का हाई ड्रेन है, उसके ऊपर में घर बनाया गया है। तो हम यहाँ का सीओ जो है उस सीओ को बोलेंगे कि जिस भी हाल में उसको तोड़ दिया जाए, लेकिन उस तरह का बात नहीं कहा। यहाँ के लोगों को वर्गला रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे बिके हुए हैं, लंबी लंबी दाढ़ी रख लिया है और बीजेपी का झंडा पकड़ लिया है, माइनॉरिटी सेल का क्या बन गए। एक है दवा बेचता है, वो कभी सीपीएम में था और अपना फायदा के लिए अग्नि मित्रा पाल से मिला हुआ है और ये करता है, उसके पीछे पीछे घूमता है। ये जो जगह है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग हिंदू मुस्लिम है। वहाँ पर हमारी माँ बहन खड़ी है, वो भी गैर मुस्लिम है, इधर में है गैर मुस्लिम। आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों को कभी भी कोई जोर जबरदस्ती कोई भी बात कहा गया है, आके कभी बोला गया कि नहीं आप चल के तृणमूल कांग्रेस में वोट दीजिए, कहीं बोला गया? किसी को कभी भी नहीं कुछ बोला गया। बोलिए नहीं, कभी भी तृणमूल कांग्रेस जात पात का राजनीति नहीं करता है। जात पात का राजनीति कौन करता है? वो है बीजेपी। अभी आप लोग देखे होंगे कल का टीवी में कि मध्य प्रदेश में बीजेपी वाला गवर्नमेंट जो है वो मदरसा का सर्वे करवा रहा है। क्यों करवा रहा है? कि इसमें क्या सिलेबस पढ़ाई होता है, इसमें आतंकवाद का तो पढ़ाई नहीं हो रहा है। क्या आप लोग बताइए कि मदरसा में आतंकवाद का पढ़ाई होता है? यूपी में योगी आदित्यनाथ पूरा मदरसा का सर्वे करवा रहा है कि मदरसा से आतंकवाद पैदा होता है। अरे मदरसा में हमारे बच्चे जाते हैं दीनी तालीम हासिल करने, कुरान शरीफ पढ़ने, वहां से फारिग होके निकलते हैं तो मौलाना बनते हैं, आलिम बनते हैं, फाजिल बनते हैं। उन बेवकूफों को क्या मालूम है इसके बारे में? अग्निमित्रा पाल आ गई, चली गई मस्जिद के पास में कूड़ा देखने की। 2 साल से यह कूड़ा साफ नहीं हुआ। आप लोग को आज मैं बता देना चाहता हूं कि जहां पे कूड़ा लोग हम लोग के ही लोग फेंकते हैं, बाहर के लोग नहीं आते हैं। अगल बगल के लोग आते हैं, वहां पर जगह खाली है, वहां पर कूड़ा फेंक देते हैं। तो हम लोगों ने प्रोग्राम लिया है, वहां पे सिलाई सेंटर बनाएंगे हम। वो जगह साफ होगा और वहां पर सिलाई सेंटर हमारी माँ बहनों के लिए बनेगा, उसी के लिए वो जगह रखेंगे। हमारा इलाका अच्छा बुरा हम लोग जानते हैं। आज पूरा इलाका ढूंढ के देखिए, 1994 के बाद एक एक इलाका डेवलप हुआ है, एक एक इलाके का काम हुआ है। रोड, पानी, लाइट, ये कौन बीजेपी वाला आके किया है? आज घर घर में टाइमली पानी भी है और 24 घंटा भी पानी है। 24 घंटा पानी गिरता है। क्या अग्निमित्र आप आला के कर दिए? एक एमएलए है, हम भी एमएलए थे। हमने उखड़ा में 25 करोड़ का पानी का प्रोजेक्ट तैयार करवाया, अजय नदी से पास करवा के
उखड़ा को 25 करोड़ का पानी दिया था। अंडाल ब्लॉक में धंडाडीर जगह है, वहां पे 10 करोड़ का पानी का प्रोजेक्ट हम रानीगंज में बनवा के दिया था। रानीगंज जो मजार शरीफ रोड है, जो हाईवे से आता है, वो रोड हमने बनवाया है एमएलए जब हम थे। अग्निमित्रा पाल आए तो उनसे कॉलर पकड़ के पूछिए कि 2 साल हो गया, एमएलए फंड आपको 1 करोड़ 20 लाख रुपए, कितना रुपया आप 82 नंबर वार्ड में ला के दिया है? आप 1 करोड़ 82 लाख रुपए मिला इसको। एमएलए को कंबल मिलता है गरीबों में बांटने के लिए, एमएलए को तिरपाल मिलता है गरीबों में बांटने के लिए, एमएलए को बच्चों के लिए कपड़ा मिलता है गरीबों में बांटने के लिए, एमएलए को साड़ी मिलता है दुर्गा पूजा में, ईद के टाइम में गरीबों में साड़ी बांटने के लिए। हम तो एमएलए थे, हम तो बांटते थे। ये जो एमएलए आई है यहाँ पर, उनसे पूछिए कि कितने लोगों को साड़ी यहाँ पे दिया है, कितने लोगों को कंबल दिया है, कितने लोगों को तिरपाल दिया है, कितने लोगों को नौकरी दिया। तो एमएलए है ना, उनका बहुत पावर है, बहुत बड़ी है। और आसनसोल दक्षिण विधानसभा में क्या प्रोजेक्ट लेके आ रही है, क्या प्रोजेक्ट के लिए विधानसभा में आवाज उठाई है, वो आके यहाँ पे बोले। दक्षिण विधानसभा में क्या क्या चीज की जरूरत है, वो आकर बोले कि हमने दक्षिण विधानसभा के लिए ये प्रोजेक्ट का प्लान से विधानसभा में आवाज उठाया है और गवर्नमेंट को दिया है। ये सब बात उनको नहीं मालूम। बोले ड्रेन जो है, ड्रेन साफ नहीं होता है। उनको सुबह 7 बजे बुलाना होगा। जब हमारा लेबर लोग आता है ना सफाई करने, तो उनको सुबह 7 बजे बुलाना होगा और उनको साथ में घूमना होगा कि चलो तुमको ड्रेन साफ कहाँ कहाँ नजर आता है कि नहीं आता है। आप तो बड़ा बड़ा बात करते हैं। बोले गुजरात में मुसलमान लोग भी वोट दिया है तो बीजेपी जीत गया। अरे 5 बजे के बाद 16 लाख वोट फर्जी वोट डलाया है, 16 लाख वोट फर्जी। बड़ा बड़ा बात करते हैं लोग। देश का माहौल खराब करके रखा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये देश में तमाम मिलके अंग्रेजों से मुकाबला किया था, अंग्रेजों को भगाया था। आज बोलते कि हम हिंदू राष्ट्र बना, संविधान को बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदल देंगे। कर्नाटका में क्या कर रहे हैं लोग? कर्नाटका विधानसभा में सावरकर जी का फोटो लगा दिया, जो अंग्रेज से मिला हुआ था, हिंदुस्तान के खिलाफ में काम करता था, उसका फोटो लगा दिए ये लोग गांधी जी का नाम को खत्म करना चाहता है देश से। गांधी जी से घर भरा है, देखिए हम लोग का घर एक मिनट তোমার কাগজ জমা আছে, পাস হয়ে গেছে, অর্ডার যেদিন হবে সেদিনে কাজ লাগবে। हो गया है। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें,
कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके, कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।